Hello friends, welcome back to the channel. This is 15th of January 2021 and we are discussing the 10th class. Yes, so let's get started with the questions. Before getting started, it's a request that you will be with your pen and paper and will note out every single question we will be discussing together because once you note it down, it you will not forget it very soon, so it will be in your mind for long. So let's get started with the first question. The first question is Ministry of State in the Ministry of Finance and Corporate Affairs is. Options are A. Anurag Singh Thakur, B. Nirmala Sitharaman, या फिर C. N. Biren Singh, or D. None of this. So the correct option here is option number A. Anurag Singh Thakur. सो अभी आपके बीच में मन में कंफ्यूजन होगा कि वाई नॉट निर्मला सीतारमन. So that we will be clearing soon in the next slide. But before that, we need to know who is N. Viren Singh. So guys, N. Viren Singh is the Chief Minister of Manipur who have recently inaugurated Cherry Blossom Festival. Let's move forward and clear our doubt between Anurag Singh Thakur and Nirmala Sitharaman. See friends, if the question is asked that Ministry of Finance and Corporate Affairs के minister कौन है, then it would be Nirmala Sitharaman. But if it's asked that Minister of State in the Ministry of Finance and Corporate Affairs कौन है, then it would be Anurag Singh Thakur. नाउ आपको एक चीज नोट आउट करना है, इफ स्टेट इज प्रेजेंट along with the Ministry of Finance, then it would be Anurag Singh Thakur. If it's just asked regarding the finance and corporate affairs, then it would be Nirmala Sitharaman. Now, one important thing, that is on 1st February 2021, our union budget is going to be launched. And the most important fact related to the union budget 2020 is that it is going to be completely paperless. Yes, completely paperless जाने वाला है 2021 का budget. So this is important from exam point of view. Now let's move forward towards the second question. Second question is which edition of Cherry Blossom Festival was celebrated in 2021? तो जो चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल है उसका कौन सा एडिशन 2021 में सेलिब्रेट किया गया? ऑप्शंस आर ए सेकेंड, बी फोर्थ, सी ट्वेल्थ या फिर डी ट्वेंटी. सो द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज ऑप्शन नंबर बी. फोर्थ edition of Cherry Blossom Festival was celebrated in 2021. Let's know some more facts regarding the Cherry Blossom Festival. तो जो चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल है वो रिसेंटली मणिपुर के स्टेट में मनाया गया है. एंड दिस वाज द फोर्थ एडिशन, दैट मींस इट स्टार्टेड इन 2017. अब जान लेते हैं सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स रिगार्डिंग मणिपुर. मणिपुर की जो चीफ मिनिस्टर है दैट इज एन वीरेंद्र सिंह, एंड जो गवर्नर है वो है नजमा हेपतुल्ला. दिस आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स यू नीड टू नो रिगार्डिंग चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल. Let's move forward towards the third question. Third question में पूछा गया है that what is India's ranking in Henley's Passport Index 2021? क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंडिया का जो रैंक है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में वो कितना है. ऑप्शंस आर ए 15th, बी 55th, सी 85th या फिर डी 90th. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी 85th. इंडिया का रैंक 85th है इन हेनलीज पासपोर्ट इंडेक्स. अब ये भी इम्पोर्टेंट है जानना कि which country had topped Henley's passport index. So the country is none other than Japan. तो जापान ने हेनलीज पासपोर्ट इंडेक्स को टॉप किया है. Now moving forward and towards the fourth question, that is which state government is working to provide free electricity schemes to farmer. तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस स्टेट गवर्नमेंट ने अपने फार्मर्स को फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए स्कीम स्टार्ट करा. ऑप्शंस आर ए तमिलनाडु, बी केरला, सी कर्नाटका या फिर डी आंध्र प्रदेश. सो द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश. तो आंध्र प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने को कहा है टू द फार्मर्स. नाउ comes the next question, that is the fifth question. Where is the first ice climbing festival of India arranged?
इंडिया का पहला आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल कहाँ अरेंज किया गया? ऑप्शंस आर ए लेह, बी शिमला, सी श्रीनगर या फिर डी जीरो। तो वन थिंग, जीरो आप लोगों में से कभी कम लोगों ने सुना होगा। जीरो इज अ प्लेस इन अरुणाचल प्रदेश, एक जगह है अरुणाचल प्रदेश में। तो द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए लेह। तो लेह में जो है फर्स्ट आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल ऑफ इंडिया सेलिब्रेट किया जाएगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत बायोटेक had collaborated with which country's Precisa Precisa met to supply Covaxin। तो रिसेंटली भारत बायोटेक ने जो है कोलैबोरेट किया है किस कंट्री के साथ? बेसिकली द कोलैबोरेशन इज इंडिजिनियसली मेड कोवैक्सिन विल बी ट्रांसफर्ड टू दैट कंट्री। तो व्हाट इज लाइक हु इज द कंट्री? ऑप्शंस आर ए श्रीलंका, बी ब्राजील, सी बांग्लादेश या फिर डी जापान। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर बी ब्राजील। सो इंडिया का जो बायोटेक भारत बायोटेक कंपनी है दैट इज गोइंग टू कोलैबोरेट विद प्रेसिसा मेड, so and the indigenously made covaxin will be transported to Brazil. Now let's know some more facts about this. The Covaxin is the first indigenously made vaccine for COVID-19. And as Bharat Biotech have launched that, so we need to know some more facts about Bharat Biotech. That is, in Bharat Biotech was established in 1996. The headquarter is in Hyderabad, that is in Telangana, and the director is Dr. V. Krishna Mohan. This is again important from an exam point of view. Who is the director of Bharat Biotech? The answer would be Dr. V. Krishna Mohan. Let's move forward towards the seventh question. The seventh question में पूछा गया है Who is the writer of the book The Population Myth, Islam, Family Planning and Politics in India? तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो बुक है द पॉपुलेशन मिथ, इस्लाम, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, वो किन्होंने लिखी है? तो ऑप्शंस आर ए अभिषेक यादव, बी वेद मेहता, सी एस वाई कुरैशी या फिर डी नन ऑफ देम। सो द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज ऑप्शन नंबर सी, एस वाई कुरैशी जी ने ये बुक लिखी है। एज ऑन द side you can see the picture as well, he is SY Qureshi, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, and this is the book he launched recently. So let's move forward and discuss the eighth question. The eighth question is biggest road tunnel boring machine of India is launched in which state? क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंडिया का सबसे बड़ा रोड टनल बोरिंग मशीन किस किस स्टेट से लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शंस आर ए मध्य प्रदेश, बी जम्मू एंड कश्मीर, सी तमिलनाडु या फिर डी महाराष्ट्र। द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज महाराष्ट्र राज्य से इंडिया का जो बिगेस्ट टनल बोरिंग मशीन है उसे लॉन्च किया गया है। लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नाइन्थ क्वेश्चन। तो नाइन्थ क्वेश्चन में पूछा गया है अकॉर्डिंग टू द हुरॉन्स रैंकिंग ऑफ कंपनीज विच कंपनी सिक्योर्ड द नंबर वन पोजीशन? तो कंपनीज on the basis of their working, on the basis of their improvement, they are ranked. So on the and also on the basis of the quality products they make, they are ranked. So question में पूछा गया है कि ह्यूरोन्स रैंकिंग में कौन सी कंपनी ने टॉप करा? तो ऑप्शंस आर ए एप्पल, बी amazon, सी रिलायंस या फिर डी माइक्रोसॉफ्ट। So the correct option for this is option number A, Apple. So Apple is the company which has topped the Hurons ranking company index. और जो सेकेंड नंबर पे है दैट इज माइक्रोसॉफ्ट, एंड जो थर्ड नंबर पे है दैट इज Amazon. And another important aspect to know is इंडिया की तरफ से 11 कंपनीज एलिजिबल हुई थी इस रैंकिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, एंड among them, among the 11 companies, the company which topped is Reliance. तो इंडिया में अगर हम पूछा जाए कि इंडिया में कौन सी कंपनी ने हुरॉन्स रैंकिंग का इंडेक्स को टॉप करा, तो दैट द आंसर विल बी रिलायंस कंपनी ने।
Let's move forward toward the 10th or the ninth or the last question for the day. तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिम्स्टेक कौन है। तो क्वेश्चन इज न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिम्स्टेक। ऑप्शंस आर ए के पलानी, बी तेंजिंग लेकपल, सी चैन स्विस या फिर डी नन ऑफ देम। So the correct option here is option number B. Tenzin Lekpal is the new chief secretary of BIMSTEC and he is from Bhutan. So he belongs to the country भूटान से वो बिलोंग करते हैं। अब हमें जानना है कि बिम्स्टेक में कितने कंट्रीज इन्वॉल्व है, दैट मीन्स हु आर द मेंबर्स ऑफ बिम्स्टेक। तो उसको याद रखने का बहुत ही सिंपल ट्रिक है। आप देखो कि बिम्स्टेक में जो है इन टोटल 7 लेटर्स है, राइट। तो ऑब्वियसली 7 लेटर्स है और 7 कंट्रीज है। तो आपको ये एक ही बार में याद हो गया कि 7 कंट्रीज जो है बिम्स्टेक के मेंबर हैं। अब मेंबर्स के नाम को कैसे याद रखना है, सी गाइस। सो बी से जो है 2 कंट्रीज हैं, B2। बी से है बांग्लादेश और बी से है भूटान। ओके। अब आई आता है, आई से है इंडिया और एम से है म्यांमार, एम से है म्यांमार। और आप तुरंत याद रखना है कि एम के बाद क्या आता है, एन आता है। तो एन से क्या आएगा, नेपाल, एन से आएगा नेपाल। एंड एन के बाद एस से आता है श्रीलंका। ओके। और देन कम्स टी, टी से आता है थाईलैंड। बहुत ही इजी है याद रखना, आप एक दो बार रिवाइज करोगी तो इजीली दैट्स गोइंग टू बी स्टक इन योर माइंड फॉर एवर। Now let's move forward and know some more facts about BIMSTEC as it's very important as per exam point of view. तो जो तेंजिंग लेकपाल है, as I have said, he belongs to Bhutan। और बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टीसेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। हेडक्वार्टर है बांग्लादेश ढाका में। एस्टैब्लिश्ड हुआ था 1997 में। और मेंबर्स कंट्रीज एज आई हैव सेड बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड। So here comes the end of the discussion of the 10 question for the day. And now, as this is the month of January, we cannot ignore the important days of January. So आज है 15th of January और 15th of January को हम मनाते हैं इंडियन आर्मी डे। So this is the day which we will be celebrating today. And now comes the session to discuss all the important days of January. तो 1st जनवरी को हम मनाते हैं DRDO डे, 4th जनवरी को मनाते हैं ब्रेल डे, 6th ऑफ जनवरी को मनाते हैं महाराष्ट्र पत्रकार दिवस, 9th ऑफ जनवरी को मनाते हैं नेशनल NRI डे, 10th ऑफ जनवरी को मनाते हैं वर्ल्ड हिंदी डे, और 14th ऑफ सितंबर को हम मनाते हैं नेशनल हिंदी डे, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। देन 12th ऑफ जनवरी को हम मनाते हैं नेशनल यूथ डे, 23rd ऑफ जनवरी को मनाते हैं हम सुभाष चंद्र बोस जयंती, 25th ऑफ जनवरी को हम मनाते हैं नेशनल वोटर्स डे, 26 जनवरी को मनाते हैं हम रिपब्लिक डे। और रिपब्लिक डे 2021 के गेस्ट जो है वो है चान संतोकी, जो कि सूरीनाम देश के प्रेसिडेंट है एंड सूरीनाम इज अ कंट्री इन साउथ अमेरिका। अब आता है 28th ऑफ जनवरी, जिसमें हम मनाते हैं डेटा प्रोटेक्शन डे। और 30th ऑफ जनवरी जो हम मनाते हैं मटायर्स डे टू ट्रिब्यूट महात्मा गांधी, बिकॉज उस दिन महात्मा गांधी जी का असैसिनेशन हुआ। So here comes the end of the video. Hope you guys enjoy it out. Do not forget to hit the like button and to subscribe to the channel if you want to get updated regarding this current affairs series. So here comes the end. Thank you so much for watching. Bye bye. Jai Hind.